اور اب خبریں تفصیل سے۔ سرینگر شہر میں پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے۔ مختصر مدت تک خاموشی کے بعد ملیٹنٹ پھر سے ایسی کارروائیاں انجام دے رہے ہیں۔ جموں کشمیر پولیس میں ڈرائیور کے طور پر کام کرنے والے پولیس اہلکار علی جان کو آج الصبح لبے سڑک گولی مار دی گئی۔ ملیٹنٹوں کا نشانہ بنے زخمی پولیس اہلکار کو اسکمز منتقل کیا گیا، لیکن اس کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ اسی بیچ جائے واردات پر جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ ہمارے چیف کرسپونڈنٹ پرویز بٹ کی دیکھیے خاص رپورٹ۔ زارو قطار رو رہی یہ خاتون زخمی پولیس اہلکار غلام حسن ڈار کی ہمشیرہ ہے۔ ڈار صبح سویرے اپنے دفتر جا رہے تھے، تبھی یہاں ملیٹنٹ پہنچے اور انہیں گولیاں مار دی۔ بتایا گیا ہے کہ حملہ آور غلام حسن ڈار کا ان کے گھر سے ہی پیچھا کرتے آ رہے تھے۔ اس علی جان روڈ پر آئیوا برج پر پہنچتے ہی ڈار پر تابڑ توڑ گولیاں برسا دی گئی، جس کے نتیجے میں ان کے سر پر بھی چوٹیں آئی اور انہیں اسکمز منتقل کیا گیا۔ ڈار خون میں نہا چکے تھے، ان کی بائک اور ہیلمٹ سڑک پر پڑے رہے۔ ڈار پی سی آر سری نگر میں ڈرائیور کے طور پر برسر کار تھے اور پی سی آر ہیلپ لائن نمبر کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ ڈار کی بہن اور رشتہ دار جب یہاں پہنچے تو اس جائے وقوع پر جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ اس واقعے کے بعد پولیس کے بشمول جوائنٹ فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر کے تلاشی کارروائیاں شروع کر دی۔ پولیس اس علاقے میں سی سی ٹی وی فوٹیج ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے، لیکن غیر رہائشی علاقہ ہونے کی وجہ سے سی سی ٹی وی فوٹیج جیسا ثبوت ہاتھ لگنا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ غلام حسن ڈار ایک بیٹی کے باپ ہے اور انہوں نے اپنا گھر بنانے کے لیے حال ہی میں بینک سے 10 لاکھ روپے قرض لیا ہے۔ یہ بالکل سراسر غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ اگر اس کے ہاتھ میں گن تھا، یہ ملٹنٹو کے ساتھ یا کوئی سول کے ساتھ یا کوئی پڑوسی کے ساتھ مطلب گولی مار رہا ہے، کوئی کسی کو ستا رہا ہے، کسی کو پیسے کھا رہا ہے، تب تو یہ صحیح ہے۔ جب یہ بیچارہ صبح نکلا تھا، مطلب اس کو گھر چلانا ہے، یہ گاڑی چلا رہا ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہے، بس یہی کام ہے اس کا، صبح نکلتا ہے شام کو آ رہا ہے۔ یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ ہمارے علاقے میں 100-200 پولیس والا ہے ہمارے کانسٹیچوئنسی میں۔ ہاں، اگر وہ مارنے سے آزادی ہوا تو تب تو ٹھیک ہے، مارا ہوا بیچارے، باقی لوگ تو آرام کرے گا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ مارنے سے آزادی ملے گا تب تو ٹھیک ہے، تب تو بالکل ٹھیک ہے۔ ذرائع کے مطابق ملیٹنٹوں کو موقع واردات تک پہنچانے والے شخص نے پولیس کے سامنے خود سپردگی کر دی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے ملیٹنٹوں نے بندوق کی نوک پر رکھ لیا تھا اور وہ انہیں یہاں تک لانے پر مجبور تھا۔ تاہم پولیس نے ابھی تک اس معاملے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ ملیٹنٹوں نے یہاں پہ حملہ کر کے ایک جموں کشمیر پولیس کا جو اہلکار ہے جس کی شناخت غلام حسن کے طور پہ ہوئی ہے، اس کو فائرنگ کر کے اس کو شدید طور پہ زخمی کر دیا گیا ہے اور انہیں اسے زخمی حالت میں ہی جو ہے اسکمز ریفر کر دیا گیا ہے، جہاں پہ اس کا علاج اس ٹائم چل رہا ہے۔ علاقے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکورٹی فورسز نے پورے علاقے کو پوری طرح سے کارڈن آف کر دیا ہے اور جو سرچ آپریشنز ہیں وہ لانچ کر دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جموں کشمیر پولیس کے اہلکار بھی ہیں یہاں پہ اور ساتھ ہی میں جو سی آر پی ایف کے اہلکار ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ یہاں پہ ایک بات یہ بتانا ضروری ہے یہاں پہ اس ایریا کے بارے میں کہ اس ایریا میں اس سے پہلے بھی ایک حملہ ہوا تھا کچھ مہینے پہلے، جب جو نان مسلم ٹیچرز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، تو اس حوالے سے اس ایریا کو کافی سینسیٹیو مانا جا رہا ہے اور کڑے سیکورٹی کے انتظامات یہاں پہ رہتے ہیں۔ سری نگر سے پرویز بھٹ، نیوز 18 اردو کے لیے۔ پلوامہ میں ملیٹنٹوں کے عزائم کے خلاف پوسٹر لگائے گئے۔ قصبہ پلوامہ کی مرکزی جامع مسجد کے پاس یہ پوسٹر باہری دیواروں پر لگائے گئے۔ ان پوسٹرز میں لکھا گیا کہ ارجمند گلزار نامی ملیٹنٹ پاکستان میں بیٹھ کر پلوامہ کے نوجوانوں کو ملیٹنسی کی طرف راغب کر رہا ہے اور نوجوانوں کا مستقبل تاریک کرنے کی طاق میں بیٹھا ہے۔ ان پوسٹروں میں یہ بھی لکھا کہ اسلام جہاد کے نام پر غیر مسلموں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور مذہب میں یہ سراسر حرام ہے۔ تاہم پوسٹروں پر کسی بھی جماعت کا نام نہیں لکھا گیا ہے۔
स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से आज पुलवामा जिले के चंदगाम और लासीपुरा इलाकों में छापामारी अमल में लाई गई। तहकीकाती एजेंसी ने मोबाइल और सिम कार्ड डीलरों के घरों पर छापा मारा। इस टीम ने चंदगाम में जुनैद मंजूर मीर और लासीपुरा में आबिद नजीर मीर के घरों पर छापा मारा और तलाशी कार्रवाई चलाई गई। साथ ही साथ दोनों से काफी देर तक पूछताछ भी की गई। इस दौरान एसआईए की टीम ने मजीद पूछगछ के लिए चंदगाम के जुनैद मंजूर को अपनी तहवील में ले लिया। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सैयद बशारत बुखारी ने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन की हतमी रिपोर्ट जमहूरियत और तरक्की के दावों की नफी करती है। साबिक वजीर कानून न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि पार्लिमानी हलकों की असर-ए-नौ हदबंदी इंतहाई घटिया तरीके से की गई है। इस मामले में कमीशन की तरफ से लापरवाही पर नाराजगी जाहिर करते हुए सैयद बशारत बुखारी ने कहा कि कमीशन की हतमी रिपोर्ट इंतहाई मायूस कुन है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि चुनाव के अमल पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। बशारत बुखारी के मुताबिक आवाम के साथ साथ मुंतखब नुमाइंदों को भी बहुत नुकसान उठाने पड़ेंगे। है कि वो चीज़ नहीं हुई है। मतलब किस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी हैं, किस तरह से बाउंड्रीज रिड्रा हुई हैं, बहुत जगहों पे तुक ही नहीं लगता है। मतलब अक्ल से बईद है बातें। और क्यों किया गया ऐसा, क्या किया गया, इससे क्या फ़र्क, मतलब क्या होगा। मतलब मैं आपको बताऊंगा, एक कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी ये शांगस थी, वो 4 हिस्सों में तकसीम हो गई, पूरे 4 हिस्सों में। अब जो वहाँ पे लोग एमएलए थे, पहले एक ही तो नहीं था, थे, उन सब का एक ताना बाना था, एक सिस्टम था, एक कंटिग्यूटी थी कॉन्स्टिट्यूंसी की, और एक डेवलपमेंटल प्रोसेस वहाँ पे ऑन था पिछले मान लीजिए 20 साल से, 10 साल से वो एक चल रहा था। और उन लोगों जो भी वहाँ पे रहते हैं या जिन्होंने नुमाइंदगी की है, उनको भी जहन में एक नक्शा था कि आगे कैसे बढ़ना है। अब आप ये कर लीजिए कि मान लीजिए एक वहाँ पे स्कीम है, वाटर सप्लाई की स्कीम है मिसाल के तौर पर, उसका सोर्स एक कॉन्स्टिट्यूंसी में गया, उसका फिल्ट्रेशन प्लांट दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया, उसका ओएचटी तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और पानी पीने वाले चौथे वाले हैं। अब देखिए कितनी दिक्कतें हो जाएंगी लोगों को। इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, पॉपुलेशन का तो ख्याल रखा ही नहीं इन्होंने, वो तो है नहीं। बाकी पैरामीटर्स का अपने हिसाब से ख्याल रखा जो हमारे हिसाब से मेल खाते ही नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो इसमें ये होनी चाहिए कि इनको देखना चाहिए था कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज डेवलप्ड हैं, कौन सी अंडर डेवलप्ड है। अगर डिलिमिटेशन सिर्फ लोगों की बहबूद के लिए है तो ये तो बहबूद के खिलाफ है। तो आपका जो इसका मतलब वो जो खमीर है इसकी, जो रूह है इसकी, वही तो खत्म हो गई। सो देयर आर प्रॉब्लम्स कि जो लोगों को आगे फेस करना होगा, और खासतौर से उनको फेस करना होगा जो मैं ये नहीं कहूँगा जो इलेक्शन लड़ेंगे, मैं ये कहूँगा जो जीत जाएंगे, उनको बड़ा मसला होगा, उनको बड़ा चैलेंज है। सीपीआईएम के सीनियर लीडर और पीएजीडी के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने कहा कि उन्हें हदबंदी कमीशन से कोई तवक्कुआत नहीं थी, क्योंकि कमीशन ने एक्ट के हिसाब से अपना काम नहीं किया और उसकी रिपोर्ट आवाम के ख्वाहिशात के खिलाफ है। तारगामी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में फिरकावाराना कुव्वतों को जवाब देने के लिए सियासी पार्टियों को एकजुट होकर काम करना चाहिए, और अगर चुनाव मुनक्किद कराए जाते हैं तो पीएजीडी इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से मीटिंग तलब करके सभी पार्टियों से राय मांगेगी। डिलिमिटेशन कमीशन से तवक्कुआत नहीं थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि ये कानून के दायरे के अंदर हुआ नहीं, डिलिमिटेशन एक्ट के दायरे के अंदर हुआ नहीं। ये उस कानून के दायरे के अंदर हुआ जिसको पास किया पार्लियामेंट ने तब जब यहां हर किस्म की रुकावटें खड़ा कर दी, अमलन कर्फ्यू नाफिज किया और सैकड़ों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया, और टेलीफोन की सहूलियात भी कहीं नहीं थी, जम्मू में भी नहीं, कश्मीर में भी नहीं। मुझे ये बताइए, सरकार पार्लियामेंट मेरे बारे में फैसला कर ले, आपके बारे में, जम्मू के बारे में फैसला कर ले, और हमें पूछे बिना हमें क्रैकडाउन में रखकर, क्या वो इंसाफ पर मुबनी होगा वो फैसला? हमें एक साथ मिलना होगा। इख्तिलाफ राय हो सकता है, अलग अलग पार्टियां हो सकती हैं, अलग अलग नुक्ते निगाह होगा, लेकिन अभी रुकावटें खड़ी की गई है। उन रुकावटों को दूर करने के लिए हम सब का एक इत्तेहाद चाहिए, आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढना है, एक साथ मिलकर, कोई ज्यादा करे कोई कम कर ले। रहा सवाल चुनाव का,
अगर आपको यकीन है चुनाव होगा तो उस वक्त पीएचडी बैठेगी क्या करना है। हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट में गुलबर्ग हलके के हाजीबल और खैपुरा को वागोरा संग्रामक कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जम करने पर नाराजगी पाई जा रही है। गुलबर्ग में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने हदबंदी कमीशन के इस फैसले पर बरहमी का इजहार किया। पीडीपी ने भी इस इक़दाम की सख्त मुखालफत करते हुए नुक्ताचीनी की। पीडीपी गुलबर्ग हल्के के यूथ सदर एडवोकेट अली मोहम्मद ने हदबंदी कमीशन से मुतालबा किया कि टंगमर्ग के खैपुरा और हाजीबल इलाके को हल्के इंतखाब गुलबर्ग में वापस जोड़ दिया जाए। अराउंड छोटे बड़े लेके इसमें 22 कम से कम विलेजेस आते हैं, वो उन विलेजेस को जो है एक्सक्लूड किया गया था, उसको क्रीरी और वागुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है फिक्स किया गया है। हमारी यही अब डिमांड रहेगी, हमारा यही अब मुतालबा है कि जो ये हमारे पटवारी सर्कल खैपुरा और पटवारी सर्कल हाजीबल है, इनको रेस्टोर किया जाए, फिर से इनको इंक्लूड किया जाए गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में, ताकि जो गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी की जो एसेंस है वो बरकरार रहे। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के शरणार्थियों ने हदबंदी कमीशन की इस सिफारिश का खैर मकदम किया है, जिसके तहत इस बिरादरी के लोगों के लिए असम्बली में एक नशिस्त मखसूस रखी गई है। रेफ्यूजियों की एक तंजीम के ओहदेदारान आज जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शरणार्थी कई बरसों से इस हक से महरूम रखे गए थे, ताहम हदबंदी कमीशन की जानिब से उठाया गया ये कदम इस समाज को सियासी तौर से बाइख्तियार बनाने में मददगार साबित होगा। करना चाहते हैं और दूसरा गवर्नमेंट को अपील करना चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम सीटें दे के हमारे पूरे फुल जस्टिस किया जाए हमारे साथ। अब तो रिकमेंडेशन कर दी है डीलिमिटेड कमीशन ने, अब तो गवर्नमेंट के पास कोई हिच नहीं है, उन्हें करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने दावा किया कि उनकी पार्टी आइंदा असेंबली इंतखाबात में 50 से ज़्यादा सीटें हासिल करके यूटी में हुकूमत बनाएगी। वो आज जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस के एक लीडर राज शर्मा का बीजेपी में इस्तकबाल किया। रविंद्र रैना ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर के लिए आवाम दोस्त पॉलिसियों की वजह से न सिर्फ सियासी लीडरान बल्कि आम लोग भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस में 50 से ज्यादा सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जम्मू कश्मीर में भी मोदी साहब की सरकार बने और जम्मू कश्मीर को फिर से स्वर्ग के जैसा सुंदर जम्मू कश्मीर बनाने का हमारा लक्ष्य है। हर्षदेव सिंह समेत पैंथर्स पार्टी के कई लीडरों ने दिल्ली पहुंचकर आज आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। याद रहे कि साबिक वजीर तालीम हर्षदेव सिंह पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने पैंथर्स के सूबाई सदर रहे राजेश पंडगोत्रा और तर्जुमान गगन प्रताप सिंह के अलावा पुरुषोत्तम परिहार और सुदेश डोगरा के हमरा आप का दामन थाम लिया। पैंथर्स पार्टी के दीगर लीडरान भी आप में शामिल हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामान संजय सिंह ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इन लीडरों का पार्टी में खैर मकदम किया। जो मूलभूत सुविधाओं से कई अरसे से वंचित हैं, उनको भी वो तमाम सुविधाएं मिल सके, भ्रष्टाचार का खात्मा हो सके और एक गुड गवर्नेंस जो हम अक्सर किताबों में ही पढ़ते हैं और जो यहां दिल्ली में इन्होंने करके दिखाया है, वो गुड गवर्नेंस जम्मू कश्मीर को भी मिल सके और जम्मू कश्मीर की तमाम समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब एक अच्छी सरकार वहां आए, भ्रष्टाचार खत्म हो और लोक राज सही मायने में स्थापित हो सके, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाया है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। माली लेन देन में मजीद शफाफियत लाने के लिए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने अतिये का ऑनलाइन निज़ाम मुतारफ कराने का फैसला किया है। बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान द्राबी ने तफसीलात बताते हुए कहा कि जेके बैंक के ताउन से एक वेबसाइट शुरू की जाएगी जहां पर हर किस्म का अतिया जमा किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि नजर नियाज की रकूम भी कैंसर अस्पताल और दीगर तालीमी इदारों को तामीर करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। द्राबी कहती हैं कि वो औकाफ के
उन अहलकारों के गिर्द घेरा तंग कर देंगी जो वक्फ के पैसे अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये नज़रो नियाज जिसको हम कहते हैं, ये बैतुल माल का हिस्सा है, ये बैतुल माल हमारे लिए है और ये अमानत है रब का हमारे पास, और इसमें किसी किस्म की खयानत आज के बाद नहीं होगी और आप गवाह रहेंगे और यहाँ के लोग गवाह रहेंगे। हम खयानत नहीं होने देंगे, लेकिन जो हमारे यहाँ पे लोग हैं आज के बाद उन पे भी इसका पैसा हराम होगा अगर वो अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए वो यूज़ करेंगे, बल्कि ये लोगों का हक है। इसमें जो हमने कहा कि हम एक कैंसर हॉस्पिटल लॉन्च करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। पूरे मुल्क में फ़ुरक़ावाराना कशीदगी में इजाफे के बारे में जब डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी को किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का हक हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि हर मजहब के मजहबी मकामात यकसा अहमियत के हामिल होते हैं। मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मस्जिदों में लाउड स्पीकर बंद करने की बात चल रही है, कहीं मस्जिद शहीद करके मंदिर बनाने की बात चल रही है। ऐसे में आपका मैसेज क्या रहेगा पूरे देश के लिए, पूरे मुल्क के लिए और कश्मीरी अवाम के लिए? देखिए, मजहबी मकामात हर एक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हम तो ये कभी नहीं कहेंगे कि मजहबी मकामात के साथ कोई इख्तलाफ हो या बेहुरमती हो। हर एक का मजहब बहुत ज़रूरी है, अपने मजहबी के साथ अकीदा हर एक का है, चाहे वो मुसलमान है हिंदू है। हम किसी को ज़ख्म नहीं पहुंचाते हैं और हम भी चाहेंगे कि हमारे अकीदे को भी ज़ख्म ना पहुंचाया जाए। रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई मशहूर किताब गीतांजलि का कश्मीरी ज़बान में तर्जुमा किया गया है और आज श्रीनगर में वही किताब जारी कर दी गई। शबनम तिलगामी ने कोलकाता में अपने दोस्तों के ताउन से इस किताब का तर्जुमा किया। कोठीबाग गर्ल्स हाई स्कूल में इस किताब का इजरा किया गया। अदबी मरकज़ कमराज के सदर ने यहाँ नामवर अदीबों और स्कॉलर्स की मौजूदगी में ये किताब जारी की। ट्रांसलेशन मुकम्मल करने के बाद मैंने मुनासिब समझा कि आज जो 7 मई है, 7 मई के जो तारीख है, ये जन्मदिन है टैगोर का। मैंने सोचा कि क्यों ना हम टैगोर को इस मौके पे याद करते हुए उनकी उस जो नोबल इनाम याफ्ता गीतांजलि है उसका कश्मीरी तर्जुमा आज हम यहाँ पे रिलीज़ करें। बहुत बड़े शायर हमारे हैं टैगोर जी, तो उनकी जो बुनियादी अपनी ज़बान है, मादरी ज़बान वो बंगाली है, तो उसका जो इम्पोर्टेंट उसकी जो किताब है वो गीतांजलि है। तो उसी का कश्मीरी तर्जुमा एक कश्मीरी जवान साल शायर हमारे हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं, बहुत अच्छे तर्जुमा निगार भी हैं और नस्ल निगार भी हैं, और जो हमारे हैं ये उन्होंने किया आज इसका तर्जुमा। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर रेडियो जॉकी उमर निसार को यूनिसेफ के अवार्ड से सरफराज किया गया। मुंबई में मुनक़्क़दा तकरीब में उन्हें फर्स्ट बेस्ट कंटेंट अवार्ड और इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड दिया गया। यहाँ सालाना रेडियो फॉर चाइल्ड अवार्ड्स की ये तकरीब मुनक़्क़िद की गई थी। कोविड वबा के दिनों में और टीकाकारी की तरगीब देने के लिए अच्छा काम करने वाले रेडियो प्रोफेशनल्स को ये अवार्ड दिए गए। याद रहे कि उमर निसार रेडियो बॉय ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। ये पूरे कश्मीर के लिए खुशी की बात है। एक नहीं बल्कि 2 अवार्ड्स लेके आ रहा हूं मैं कश्मीर फ्रॉम यूनिसेफ, जहां पर इंडिया के सारे आरजेस ने नॉमिनेशन डाली थी, अपना क्रिएटिव वर्क डाला हुआ था। और खुशी की बात पूरे कश्मीर के लिए ये है कि मैंने नंबर 1 बेस्ट कंटेंट का अवार्ड ले लिया और साथ में ही फिर और एक ले लिया। और जेन्युइनली आई डेडिकेट दिस अवार्ड टू माय लिसनर जो मुझे इतना प्यार देता है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओल्ड टाउन बारामूला में आज दोपहर 4 रिहायशी मकानों को आग लग गई। आतिशज़दगी के इस वाक़े में कम से कम 14 ख़ानदान बेघर हो गए हैं। 3 मंजिला रिहायशी मकान में शोले भड़क उठे थे और आनन फानन में आग करीबी मकानों तक फैल गई और इस दौरान अमलाक को भारी नुकसान पहुंचा। इस वाक़े में किसी के ज़ख्मी होने की कोई इतला नहीं है। आग लगते ही लोगों ने फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन को इतला दी, जिस पर फायर सर्विस वालों ने बरवक्त कार्रवाई की और मकामी नौजवानों की मदद से भयानक आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। आग की शिद्दत को देखते हुए करीबी मकामात से भी फायर इंजनों को फौरी तौर पर मंगवाया गया और आग बुझाने के अमल में कई फायर इंजन इस्तेमाल किए गए। फायर डिपार्टमेंट और मकामी नौजवानों की अनथक मेहनत के बावजूद आग ने 4 ढांचे तबाह कर दिए। पुलिस और फौज, सिविल इंतजामिया के अफसरान मौके पर पहुंचे और आग मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम कराने का यकीन दिलाया। इन मुतासरीन ने मुनासिब मुआवजे की अपील की ताकि वो जल्द से जल्द अपने मकानात तामीर कर सकें। आग लगने की फौरी वजह
तौर पर मालूम नहीं हो सकी, ताहम फायर एंड इमरजेंसी के हुक्काम का कहना है कि शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है। पता वन कि बहरहाल अस पेटस मज आज 10-12 मकान यमन मकान मज कम से कम 4-5 फैमिली अकिस मकान मज 30-40 फैमिली गई वनस मुतासर अत मज कह रूद यह सामान इन लाश नाश आज तान जमा कोर्मुत सह गो खसा सोल फोक डेरस मैं तिम फिलहाल कर तो रेहबिटेशन खतर इंतजाम इनके लिए बैठने को जगह नहीं, शाम को कहाँ बैठेंगे, किस जगह बैठेंगे। पेट्रोल गो वनस मौसम गंद कुछ गो बसान वन गोस वनस बेहनस इंतजाम गन खान चना वकन के खतर पगह वुशा पत आयंद क्या करा क्या लकट लकट बचो क्या बीत ननिस आसमानस मन शुक्र करान फायर ब्रिगेड शुक्र करान ये जवानन हूँ पन पन्नस पानस खुश न कहें मकान पे खत नार छवरावनस मज कोशिश कर नत नार हर तम क्या मकान गंजर यह नार हर तम वात वोतमुत। वादी में ज़लावारी से मेवा बागात समेत दीगर फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। नुकसानात का जायजा लेने के लिए पुलवामा के चीफ हार्टिकल्चर अफसर जावेद अहमद ने मुतल्लिक़ा महकमे के अफसरान के हमरा सतौरा, सोफीगुंड, नारिस्तान और दीगर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मेवा बागात में हुए नुकसानात का तफसीली जायजा लिया और नुकसान की भरपाई करने की बाग मालिकान को यकीन दहानी कराई। चीफ हार्टिकल्चर अफसर के मुताबिक शदीद ज़ालाबारी के बावजूद ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बाग मालिकान के लिए जल्द ही एडवाइजरी भी जारी की जाएगी। कल हमारे इलाके में अगर शदीद ज़ालाबारी हुई है, उसकी वजह से जो हमारे बागात है उनमें बहुत नुकसान हुआ है और उसी नुकसान के रिगार्डिंग हम अभी हमारे बागात में अभी जो चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है उनका विजिट हुआ है और उन्होंने अभी चेक किया हमारे बागात का कि क्या नुकसान हुआ है। तो इसमें इनको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ स्प्रेज करने पड़ेंगे ताकि जो इसके बाद एहतिमाल है इसके जो आफ्टर मैथ जो डैमेज हो सकता है, जैसे फ्रूट ड्रॉप हो सकता है या कोई बीमारी भी लग सकती है, तो उसके लिए हम इनको अभी एडवाइजरीज देंगे कि इनको क्या करना चाहिए ताकि बाद में कोई नुकसान ना पहुंचे। राजौरी में जारी रिक्रूटमेंट रैली को लेकर नौजवानों में काफ़ी जोश व खरोश पाया जा रहा है। नौजवानों को उम्मीद है कि वो मुंतखब होकर मुल्क की खिदमत करेंगे। डीपीएल में इन नौजवानों का फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है। इस तरह फोर्सेस में जगह पाने का रास्त मौका फराहम करने पर इन नौजवानों ने हुकूमत के साथ इजहार तशक्कुर किया। बताया गया कि राजौरी और पुंछ अजला के 262 नौजवानों की पुलिस में भर्ती होगी। इस ज़मन में मरकजी हुकूमत ने 2 सरहदी बटालियन बनाने के अहकाम पहले ही दे दिए हैं। भर्ती रैली में बड़ी तादाद में नौजवान पहुंच रहे हैं। मतलब हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन्होंने ये मतलब वाटर बटालियन के लिए एक स्पेशल मतलब कोटा जो ऑर्गेनाइज किया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब जल्द से जल्द हमारा रिटर्न जो बेस है वो मतलब डेट इशू की जाए। और बहुत अच्छा कॉपरेट किया, बहुत अच्छी यहाँ पे भर्ती जो मतलब इतने अच्छे लीगल तरीके से की गई है। तो बहुत अच्छे मतलब अच्छे टाइमिंग आ रही है, लड़कों की अच्छी प्रैक्टिस। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। कश्मीर के कदीम मंदिरों की शान रफ्ता बहाल करने और इन मंदिरों में सनातन धर्म का प्रचार कराने की गर्ज से मटन के सूर्य मंदिर और कदीम मार्तंड मंदिर में महायज्ञ और खुसूसी पूजा का एहतमाम हुआ। इन तकारीब में वृंदावन के साधुओं और आश्रम के 100 से ज़्यादा शागिर्दों ने शिरकत की। इस मौके पर कश्मीर से अमन और भाईचारे का पैगाम दिया गया। पेश है हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की ये रिपोर्ट। कश्मीर के कदीम मंदिरों में मजहबी तकारीब की बहाली की गरज से उत्तर प्रदेश के राष्ट्र आनंद सर्वपीठ के साधुओं और शागिर्दों पर मुश्तमिल वफ्द ने जनूबी कश्मीर के प्राचीन मंदिरों का दौरा किया। इस दौरान मारूफ सूर्य मंदिर और राजा ललितादित्य के तामीर करदा कदीम मार्टेंड मंदिर में महायज्ञ और खुसूसी पूजा का एहतमाम हुआ। 2 दिनों के दौरे के दौरान कश्मीर में नामसाइद हालात की जद में आकर मारे गए बेगुनाह अफराद के हक में भी खास यज्ञ किया गया। चेतना का जागरण हो, सब आपस में ज्ञान मार्ग की गंगा, एक ज्ञान की गंगा अवतरित हो जिससे सबके बीच में सौहार्द और शांति की व्यवस्था स्थापित हो जाए। जो सबके बीच में वैमनस्य उत्पन्न हो गया है, एक दूसरे से
झगड़ा है, लड़ाई है, ये सब नष्ट हो जाए और सब एक दूसरे से प्रेम करें। जैसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। जब प्रेम होगा आपस में तो प्रेम भी हमारे हृदय में तभी अवतरित होगा जब हमारे अंदर से अज्ञान नष्ट होगा। तो यहाँ की प्राचीन ज्ञान परंपरा पुनर्पोषित होकर के और उसका पुनर्वास हो, हमारी संस्कृति का पुनर्वास हो। यहाँ वैदिक संस्कृति के माध्यम से जो यज्ञ आदि अनुष्ठान हुआ करते थे उनमें काफ़ी कमी आ गई। अब जो बचा है थोड़ा बोड़ा वो यहाँ पर है। तो हम चाहते हैं कि कश्मीर क्षेत्र पुनः अपने उसी दिव्य आभा को प्राप्त करे और जब हमारे माँ भारती का शीर्ष भाग मस्तिष्क अगर अच्छा होगा तो पूरा शरीर अच्छा चलता है। उधर मुकामी पंडितों ने इस तरह की तकारीब का खैर मकदम किया, जबकि कश्मीर से प्याम अमन के साथ साथ मजहबी भाईचारे और मुल्क में फैलती नफरतों की दीवार को ख़त्म करने का पैगाम भी बुलंद हुआ। साथ ही शारदा पीठ तक आम अकीदतमंदों की रसाई मुमकिन बनाने का भी मुतालबा किया गया। मैं आपको यहाँ पर यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ भाईचारा का गहवारा है। यहाँ मिसाल रही है कि 90 से पहले भी और 90 के बाद भी यहाँ अमन है, गहवारा है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद एकता बराबर है। और यहाँ भी लोग जो भी आते हैं, यात्री भी जो आते हैं, वो साधु संत आते हैं। यहाँ हर कोई चाहता है कि हम भी हवन करेंगे, हम भी यहाँ बैठेंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो हमारी यही इसी में खुशी है। हम चाहते हैं कि सारा भारतवर्ष यहाँ देखे कि यहाँ कितना अमन मान अच्छा है और भगवान स्वयं मतलब भगवान सूर्य ने स्वयं यहाँ पर जन्म लिया है। पीठ शारदा पीठ नाम से बहुत प्रसिद्ध है ये कश्मीर। तो शारदा पीठ तक हिंदू हमारे समाज को जाने का मार्ग खुले और हम यही सरकार से चाहेंगे कि हम लोग वहाँ पहुँच करके हमारी पूजा सेवा कर सकें और वहाँ का भी पुनरुद्धार हो, इन जीर्ण शीर्ण मंदिरों का पुनरुद्धार हो। कश्मीर में नामसाइद हालात की वजह से गुज़िश्ता बरसों में इस तरह की तकारीब में नुमाया कमी को दूर करने के लिए इन साधुओं और ज्ञानियों ने तमाम मंदिरों की तजदीद नौ का भी मुतालबा किया, जबकि यहाँ के लोगों से दूरियों को मिटाने में कलीदी रोल अदा करने की भी तलकीन की। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी परंपराएं नष्ट हो गई मिलजोल की, वो फिर से स्थापित हो। कश्मीर फिर से एक स्वर्ग तो है ही प्राकृतिक रूप से, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी ये स्वर्ग बने और यहाँ ज्ञान की चर्चा हो। हम हृदय से आए हैं इस शीर्ष में प्रणाम करते हुए और फिर हम पुनः माँ के चरणों में जाएंगे और ये बार बार हम चरण और सर तक की यात्रा करते रहेंगे। और यात्रा ही आदिगुरु शंकराचार्य ने सिखाई थी। हम लोग यात्रा कर करके सबको जागृत करेंगे, यही हमारा संकल्प है। जय जय श्री महाकाल हर हर। वाज़ेह रहे कि मटन का मारूफ सूर्य मंदिर मजहबी और तारीख़ी लिहाज से काफ़ी अहमियत का हामिल है, जबकि मार्टेंड मंदिर भी कश्मीर की कदीम तरीन फ़न तामीर और सकाफ़त का जीता जागता नमूना है। ऐसे में इस तरह की तकारीब इस मीरास को दुनिया के सामने लाने में भी काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुदस्सिर खादरी की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल शामबीर ने अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के फौरन बाद तमाम मुतल्लका ज़िले अफसरान की एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने अहसन अंदाज में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के इनेकाद के सिलसिले में दरकार इंतजामात का जायजा लिया। मुक़द्दस गुफा के रास्ते में की जाने वाली तैयारियों के हवाले से तमाम मुतल्लका महकमों के अफसरान ने DC को जानकारी दी। ऐश मकाम में खन्नावल पहलगाम रोड पर सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हुई। तफसीलात के मुताबिक बिलाल अहमद पीर साकिना लेतर व ऐश मकाम को मुबैना तौर पर CRPF की गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। अगरचे उन्हें फौरी तौर पर SDH सैर हमदान मुंतकिल किया गया, तहम जख्मों की ताब न लाकर वो चल बसा। लोगों ने कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करने की DC व SSP अनंतनाग से अपील की है। उधर ऐश मकाम में KP रोड से बैरिकेडिंग हटाने का भी लोगों ने मुतालबा किया। उधर पुलिस ने ज़िमन में मामला दर्ज करके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को भी जब्त कर लिया। पुलिस के आला अफसरान ने भी जाए वारदात का मुआयना किया। मुल्क में कोविड से होने वाली अमवात के बारे में गलत आदाद शुमार पेश करने पर जम्मू कश्मीर प्रदेश यूथ कांग्रेस के रियासती सदर ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। भानु चिब ने इस ज़िमन में WHO की रिपोर्ट का हवाला दिया है। उन्होंने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत कोविड मैनेजमेंट में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हम जानते हैं WHO के जो कोविड रिलेटेड जितनी डेथ्स हुई हैं इंडिया में, उनका जो स्टैट आया है, उनका जो फिगर आया है,
वो 47 लाख को भी ज्यादा क्रॉस कर रहा है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैट्स है जो बताती है कि कोविड के कारण जितनी मौतें पूरे देश भर में हुई हैं वो 5 लाख से भी ज्यादा नहीं हुई हैं। तो लगभग 10 गुना ज्यादा स्टैट WHO जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ज्यादा बता रहा है। तो हम ये सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से, बीजेपी सरकार से, कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो इतनी मौतें हुई कोविड के कारण उनका जो नंबर है वो आपने भारत के लोगों से छुपाया क्यों? क्या वो भारतीय नहीं थे? क्या उनका कोई हक नहीं था? अगर आपको लग रहा है कि कोविड को आप संभाल नहीं पाए, मैनेजमेंट अच्छी नहीं हो पाई और उसके कारण सबसे ज्यादा पूरे देश में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें भारत देश में हुई हैं और उसकी जिम्मेदारी नहीं लेकर उसको छुपाने के लिए आप अगर गलत फिगर दिखाएंगे तो आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और सबसे ज्यादा धोखा आप भारत के हर एक निवासी को दे रहे हैं जिन्होंने वोट डालकर आपको सरकार में और सत्ता में लाया है। और जब आप अपनी गलती को ही नहीं मानेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता आप अपनी गलती का सुधार करेंगे, क्योंकि जब तक हम गलती पहचानेंगे नहीं तो उसका इलाज ही नहीं शुरू होगा। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत आज से 50 रुपये बढ़ा दी गई है। वादी में माली हालात पहले से ख़राब हैं, ऐसे में रसोई गैस सिलेंडर महंगा हो जाने से गरीबों की मुश्किल बढ़ चुकी है। नए नरखों के मुताबिक 14 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत अब 950 रुपये से बढ़ गई है। दूसरी जानब कश्मीर के कई इलाकों में LPG गैस के इस्तेमाल पर दी जाने वाली सब्सिडी भी बंद कर दी गई है। एक्सपेक्टेशंस को एक बार फिर से साइड में रखकर आज सुबह लोगों के सामने ये खबर आई कि 50 रुपये फिर से उस सिलेंडर पे चढ़ गए हैं और 950 तक वो सिलेंडर अब पहुंच गया है। लेकिन आपको मालूम होगा एक अरसा बीच में ऐसा भी आया था जब इन गैस सिलेंडर्स पे एक सब्सिडी भी हुआ करती थी जो आपके कंसर्न अकाउंट्स में ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हुआ करती थी। लेकिन आपको मालूम होगा पिछले कुछ महीनों से वो सब्सिडी भी नहीं आ रही है, यानी जिस रेट पर आपको सिलेंडर बाजार में मिलता है उसी रेट में ही घर तक पहुँचता है। वो लगातार गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट्स में इजाफा किया जा रहा है, तो ये एक गरीब जाए तो जाए कहाँ एक गरीब। तो मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूँ कि जो आप रोज़ नए जो रेट लिस्ट्स आते हैं, LPG में लगातार पिछले कई दिनों से रेट्स बढ़ती है, या पेट्रोल पे आप 110 रुपये पर लीटर बिकता है आज, डीजल हो या बाकी जो ज़रूरत ज़िंदगी के जो चीज़ है वो लगातार बढ़ती जाए, तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कन्फेडरेशन ने चक्का जाम करने की धमकी दी है। तंजीम ने कहा कि उनके मुतालबात पूरे न हुए तो 15 मई को चक्का जाम किया जाएगा। ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कन्फेडरेशन के चेयरमैन ने इस ज़िम्न में श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स पर आयद किया गया नया NGT टैक्स उनके लिए एक बड़ा बोझ है। की कॉल दी थी, उस वक्त भी हम इसी मुद्दे पे थे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते जो टैक्स उन्होंने हमें एक साथ भरने के लिए कहा था। लेकिन उसमें कल ही एक ऑर्डर आया कि वो आप क्वार्टरली भर दें, लेकिन साथ साथ जो नया ऑर्डर आया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में है कि जो कि NGT का टैक्स भरिए, वो हमें फिटनेस फीस 900 रुपये लगते थे और आज हमें 16,000 रुपये भरना पड़ता है। सोमो में 600 रुपये लगते थे और आज हमें 8,000 रुपये 6 महीने के लिए भरना पड़ रहा है। ये जैसी हालत 30 जनवरी को थी, 30 मार्च को थी, आज भी उसी हालत में हम कागज नहीं कर पा रहे। हमारे पास पैसा नहीं है कि हम वो टैक्स भरे और हम अपनी गाड़ियां चला सकें। अगर 15 मई तक इन्होंने SRTC को नहीं रोका और टाइम टेबल पर नहीं चली, तो मैं एज ए चेयरमैन मैं जितनी भी गाड़ियाँ, चाहे साउथ से मेरे साथ हैं यहाँ पर शबीर अहमद जो साउथ देख रहे हैं, या नॉर्थ से हैं, या बांडीपुरा से, बारामूला से, जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को बुलाया है आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम 15 तारीख को जितनी भी गाड़ियाँ हैं, चाहे वो सोमो है, चाहे वो बस है, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो जो पैसेंजर गाड़ी है, वो सीधा हम बटमालू लाएंगे। अगर इन्होंने नहीं रोका, हम आपके माध्यम, देखिए हम वो कौम है, हमने कभी अपने लिए हड़ताल नहीं। डोडा में आयुष्मान भारत स्कीम का जाली डेटा जमा कराने वाले नोडल अफसर पर आज तक कार्रवाई नहीं की गई। इस ज़िम्न में जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि वो मुतल्लिक़ अफसर से जवाब तलब करने में नाकाम रहा। महकमे सेहत से वजाहत तलब किए जाने के बाद 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। अब मुंतखब नुमाइंदों और सिविल सोसाइटी के अराकीन ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत में एक बार फिर LG इंतजामिया से दरख्वास्त की कि इसमें मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराएं। मुजरिम के खिलाफ कार्रवाई न होना ये साबित करता है कि वो काफ़ी ताकतवर है और इंतजामिया को आसानी से गुमराह कर सकता है।
आयुष्मान भारत इतनी इम्पॉर्टेंट स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसके लिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और उसी को ये इतने फेक कार्ड्स बन रहे हैं यहाँ डोडा में, स्पेशली जो नोडल ऑफिसर हैं इनके पर्टिकुलरली, उन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हम बार बार ये डिमांड करते आ रहे हैं कि इन पे एक्शन कीजिए, लेकिन अब बार बार कह रहे हैं कि नहीं, अभी हमने ये ऑर्डर निकाला, अब हमने वो ऑर्डर निकाला, लेकिन वो ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, वो हमें कुछ दिख नहीं रहा है। We have to take the cognizance. If somebody is misleading the government, he is doing crime, he has to punish. लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। नहीं, मैं तो वही कर रहा हूँ कि आप जो भी कंसर्न है, जो भी है, उस पर एक्शन लेने की बात करिए ना। आप ऑर्डर पे ऑर्डर लगाना इज नॉट ए सोल्यूशन। हमको सोल्यूशन, पब्लिक को सोल्यूशन चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि अगर इतने बड़े बड़े गफले यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रहे हैं आयुष्मान कार्ड के लेके या किसी और कार्ड को लेके, तो इन लोगों को इस चीज़ को ठीक करना चाहिए और जल्द ये जो इंक्वायरी है इसका जो है रिजल्ट पब्लिक के सामने आना चाहिए और पब्लिक को इन सुविधाओं का फायदा मिलना चाहिए। कुलगाम जम्मू व कश्मीर डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन की 7वीं रियासती कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस इजलास के दौरान पार्टी के नए सदर का इंतखाब भी अमल में लाया गया। फेडरेशन के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभय मुखर्जी के अलावा CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। नौजवानों ने रोज़मर्रा के मसाइल और मुल्की व रियासती हालात पर अपनी राय का इजहार किया। तारिगामी ने कहा कि नौजवानों को आगे आने की ज़रूरत है, जबकि JDYF के नौ मुंतखब सदर वाहिद सुल्तान डार, नायब सदर मोहम्मद अब्बास राथर और जनरल सेक्रेटरी इरफान गुल ने नौजवानों की बका के लिए काम करने पर जोर दिया। आपने वादे करने में आपका मुकाबला नहीं, और थक गए हम हमारे कान क्या अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन कहाँ किधर? अच्छे दिन अगर हैं तो बड़े बड़े ये जो सरमाएदार हैं, मगरमच्छ लोग हैं, दाएं बाएं जो सरकार के बैठे हैं, उनमें उनके एहसासों में इजाफा हुआ है। लेकिन अगर कहीं तरक्की हुई है मुल्क में, वो महंगाई में हुई है, वो भुखमरी में हुई है, वो और जो बेहिसी में हुई है। बदकिस्मती से इतना बड़ा मुल्क आज इस मामले में पीछे जा रहा है, और ये कोशिश नहीं है अहले इक़्तिदार की तरफ से अवाम के साथ जो वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाए। डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने DC बारामूला का ओहदा संभाल लिया है। साबिक DC और दीगर अफसरान ने सहरिश असगर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर सहरिश असगर ने डाक बंगला बारामूला में ज़िले अफसरान के साथ एक तारुफी मीटिंग की सदारत की। सहरिश असगर ने डिप्टी कमिश्नर बडगाम, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन कश्मीर, मिशन डायरेक्टर जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के तौर पर भी काम किया है। यही एक्सपेक्टेशन है कि आप मेरा जो गोल रहेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो ये रहेगा कि मैं लोगों की जो भी मुश्किलात हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको जल्दी से जल्दी और एक रैशनल तरीके से सॉल्व कर सकूं। लोगों से मिलूं, उनकी प्रॉब्लम सुनूं, उनकी जगहों पे जाके, मौक़ों पे जाके देखूं कि क्या इश्यूज़ हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आई वांट कि लोग भी उतना ही हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें। हम हर टाइम आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, और हम यही चाहते हैं कि जितनी हम तक हमारे से हो सके, जितनी हमारे से पॉसिबल हो, उतनी हम कोशिशें करें, काविशें करें, और सारी एडमिनिस्ट्रेशन मिलजुल के एक टीम की तरह काम करेगी आपकी सारी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, आपकी जो उम्मीदें हैं हमसे, जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे, उस पर पूरा उतरने की। लुधियाना के SPS अस्पताल ने श्रीनगर में अपनी सुपर स्पेशलिटी OPD सर्विस का आगाज़ कर दिया है। इससे खित्ते में मेडिकल शोबे में माहिराना रुझान का इजाफा होगा और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस मरीजों को दस्तयाब रहेगी। ये 350 बेड्स का अस्पताल है। इस ज़िम्मन में अस्पताल के जिम्मेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीलात से आगाह किया। श्रीनगर में मरीज ऐसी तिब्बी खदमात का लंबे अरसे से इंतज़ार करते आ रहे थे। एग्रीकल्चर सब डिवीज़न गांदरबल के अफसरान ने ज़िले के गुटलीबाग इलाके का दौरा किया और किसानों में मकई के हाइब्रिड बीज मुफ्त तकसीम किए। महकमा इस प्रोग्राम को दूसरे गांव तक फैलाने का मंसूबा बना रहा है, जहां ज़रूरी सरगर्मियां किसानों की आमदनी का बड़ा जरिया है। अहदेदारों ने किसानों के दरपेश मसाइल को भी सुना और हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। पुलवामा में अपनी पार्टी के सीनियर लीडर अवतार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। उनका कहना है कि आवाम की सहूलियात के लिए भी PRIs के साथ साथ
जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत होना ज़रूरी है। अवतार सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अवामी नुमाइंदगी और हुकूमत न होने की वजह से ब्यूरोक्रेट्स की मनमानियां जारी हैं। उन्होंने कहा कि हदबंदी कमीशन की फाइनल रिपोर्ट आ गई है और अब यूटी में असेंबली इंतखाबात कराना लाजमी हो चुका है। मेंढड़ में सीनियर एनसी यूनिट के लीडर मोहम्मद सैयद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने हदबंदी कमीशन की जानिब से उनकी मांग को पूरा करने पर इजहार तशक्कुर किया। हदबंदी कमीशन ने अपनी पहली रिपोर्ट में मेंढड़ असेंबली हल्के की 11 पंचायत को पहली रिपोर्ट में सुरनकोट असेंबली हल्के के साथ रखा था। अब हदबंदी कमीशन ने अपनी हतमी रिपोर्ट में इनको दोबारा मेंढड़ के साथ रखा है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ ने अपने अहाते में रस्म रुनुमाई की एक तकरीब मुनक्किद की। कॉलेज के साबिक तालिब इल्म डॉक्टर मोहम्मद शाहनवाज की लिखी किताब की रस्म इजरा की गई। उन्होंने 20 से ज़्यादा तहकीकी मज़ामीन शाया किए हैं। बैनुल-अक़वामी शोहरत की 8 किताबें तसनीफ़ की हैं। उन्होंने इस कॉलेज की लाइब्रेरी के लिए अपनी चंद बेशकीमती किताबें भी अतिया की हैं। इस मौके पर 2 किताबों का इजरा किया गया। बांडीपुरा के छठे बांडे इलाके में आज आबादी के मारूफ सूफी बुजुर्ग लाला आरागामी का सालाना उर्स इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर उनकी ज़ियारतगाह पर खतमातुल मौज़्ज़मात की महफिल मुनक्किद की गई, जबकि महफिल समा मुनक्किद करके लाला आरागामी के सूफी कलाम को पेश किया गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन के तबादले के ज़िम्न में आज डीसी ऑफिस कुपवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनहास के अलावा मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के काम की सताइश की गई। जिला पुलवामा के लासीपुरा ब्लॉक हेडक्वार्टर पर योगा डे का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ इलाकों के स्कूली बच्चों ने शिरकत की। योगा प्रोग्राम में बीडीसी चेयरमैन लासीपुरा सज्जाद रैना मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। शोपियां में सीआरपीएफ की जानिब से एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मुख्तार अहमद दोई की याद T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच 9 मई को इम्तियाज टोकर स्टेडियम बटपुरा शोपियां में खेला जाएगा। आईजी सीआरपीएफ और डीसी शोपियां नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए फाइनल में शिरकत करेंगे। बीडीसी चेयरमैन चौधरी हनीफ ने गुजर कम्युनिटी के लिए चिनाब वैली में एक भी सीट महफूज न रखने को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि गुजर तबके में नाराजगी पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि गुजर तबका हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद करता है। बांडीपुरा के नादिहल इलाके में आज सीआरपीएफ की 3rd बटालियन की जानिब से एक मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। कैंप का इफ्तिताह बटालियन के सीओ राकेश शर्मा ने किया। कैंप के दौरान सैकड़ों लोगों का मुफ्त इलाज व मुआवजा किया गया और इनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। बेटर होप नामी गैर सरकारी तंजीम ने लोगों को बेहतर सेहत की फराहमी के लिए एक पहल की है। इसके तहत पटन के हबक टेंगू में मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। तहसीलदार सिंहपुरा साकिब मुर्तज़ा ने SHO मागाम गौहर अली के हमरा इस कैंप का इफ्तिताह किया। मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलत के साथ साथ मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। सीआरपीएफ की जानिब से वहाब साहब शारशाली में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके के लोगों की तिब्बी जांच की गई और इनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम किए गए। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल झलास पुंछ की तरफ से एक रैली निकाली गई। रेड क्रॉस डे के ज़िम्न में ये रैली निकाली गई। जोनल एजुकेशन अफसर अनवर खान ने कहा कि ज़िम्न में क्विज और सिंपोजियम मुनक्किद किए जाएंगे। पुंछ में फौज ने आर्मी वाइफ्स एसोसिएशन के इश्तराक से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर शहीद जवानों की बेवाओं को हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई और उनके मसाइल हल किए गए। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।